Let's get started. Hi all, welcome to my channel That Hazel Girl. So today in this video I'm going to shave my face for the first time and I'm going to let you know what all the steps I follow. So if you are also a beginner and you want to shave your face and see what it gives you, how it feels to shave your face, and basically this is a pamper skincare video. In this video I'm going to tell you how to shave your face for the first time if you are a beginner. Without wasting a time, let's get started. Alright, so today in this video I'm going to use the Carmesi face razor. This is the cardboard packaging. In this package I got 3 Carmesi razors, facial razors, and it says that it provides instant and painless hair removal. It's suitable for eyebrows, upper lip, forehead, chin, sideburns and peach fuzz. These all are peach fuzz. So mera to I don't feel I have peach fuzz, but if you are facing the peach fuzz problem, sebum, you can shave your face if you are comfortable. So all stainless steel, it provides precise shaving, anti-slip grip, and it also has protective cap, which is a good thing. Okay, so the direction mentioned here is how to use is simply you have to wash your face and then start shaving. But I'm going to add more tips and tricks while shaving your face. If you are a beginner, if you want to shave your face, please follow these steps. And without further ado, let's get started. Alright you guys, so first I'll take this wet wipes and I will clean my face thoroughly. क्योंकि हमारे फेस पे कोई भी गंग कुछ भी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आई टेक दिस डर्माको का पीलिंग सोल्यूशन. ये 10% 15% AHA एंड BHA सोल्यूशन जो है दैट आई हैव टेकन माई पाम एंड आई रब इट एंड आई स्प्रेड इट ऑल ओवर माई फेस. तो अच्छे से मैं अपने जितने भी फेस के कर्व्स हैं, लाइक जो भी नोज़ का एरिया है जहाँ पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होने की गुंजाइश होती है, वहाँ पे मैंने अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है थर्ली एंड देन आई विल लीव इट फॉर 10 minutes. This whole session for me was really calm and giving myself that me time. So I'm taking my own sweet little time to moisturize my face, to apply the peeling solution, and then I will shave my face. So now I will give this solution 10 minutes to sink in my face and then I will wash it off. सो वॉश करने के बाद आपको अपने फेस को ऐसे ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना. आराम से कोई भी एक बहुत क्लीन कॉटन क्लॉथ लेके अपने फेस को डैप 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 करके पोंछ लेना है. सो आई विल स्टार्ट दिस सेशन विथ टाइंग माई हेयर एंड देन आई विल अप्लाई aloe vera gel. I have seen many people, they start shaving their face in a dry face also. That works for them. But if you are a beginner, I will always suggest कि आप कोई एलोवेरा जेल ले लो, कोई भी क्लियर जेल ले लो एंड देन स्टार्ट शेविंग. क्योंकि क्या होता है ना कि फिर वो रेज़र बहुत अच्छे से ग्लाइड करता है. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि डू नॉट आपको कभी भी रेज़र 90 डिग्री में नहीं होल्ड करनी चाहिए. हमेशा उसे स्लैंट 45 डिग्री में अपने फेस पे होल्ड करना चाहिए. एंड थर्ड थिंग, आप कभी भी रेज़र को ऐसा टिप से नहीं पकड़ोगे, हमेशा उसे टेल से पकड़ोगे. उससे क्या होता है ना, हमेशा कम प्रेशर मिलता है. एंड एज यू आर अ बिगनर, यू डोंट वांट टू कट योर सेल्फ, राइट. तो मैंने कार्मेसी की पैकेजिंग पे सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लिए थे. वॉट एवर रेज़र यू यूज़, ऑलवेज read the instruction before starting the procedure. So I have started my face shaving. आपने देखा होगा मैं उसे हमेशा टेल की साइड से एकदम स्लैंट
एंगल पे मैंने स्टार्ट किया है शेविंग करना। वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा पीच फज नहीं है, बट स्टिल लाइक आई हैव स्टार्टेड। कितना कम प्रेशर दे के मैंने स्टार्ट किया है। आपको भी ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे एरिया पे वर्क करना होगा, एंड बहुत जेंटली आपको शेविंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब आप शेव करते हो ना, आपको हल्की सी इचिंग हो सकती है, तो डू नॉट वरी फॉर दैट। आप आराम से शेव कर लो, और कीप अ टिश्यू विथ यू सो दैट वट एवर द गंक एंड द पीच फर्स यू आर गेटिंग, आप अपने फेस को और रेजर को क्लीन रखो उस टिश्यू। आई एम शोइंग ऑल माई रियल एंड ओरिजिनल फुटेज कि मैंने कैसे शेव किया है विदाउट कटिंग एंड एडिटिंग। तो आप अच्छे से देख लो कि मैंने डिफरेंट एरियाज़ पे, अगर आप देखो तो मैंने डिफरेंट तरीके से रेज़र को पकड़ा है। तो यू कैन सी एंड टेक इन इंस्पिरेशन, एंड इफ़ यू वांट टू शेव योर फेस यू शुड फॉलो दीज प्रोसीजर। कि अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा चिन एरियाज़ में एंड मॉस्टेज एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर रेज़र यूज़ करने में, तो आपको ना हल्का सा स्किन अगर आप स्ट्रेच करोगे ना, तो यू विल गेट दैट कॉनवास कि आप वहाँ पे अच्छे से मतलब रेज़र यूज़ कर सको। आप हल्का स्ट्रेच कर सकते हो, बट डो नॉट स्ट्रेच योर स्किन बहुत ज़्यादा, वरना इट विल हर्ट यू। एंड अगर आपके फेस पे एक्ने है तो वहाँ पे आप रेज़र ज़्यादा यूज़ मत करना, उस एरिया को ऐसे ही बेयर छोड़ देना, वरना मे बी दैट एक्ने विल गेट ट्रिगर और समथिंग। एंड सेकेंड थिंग कि यू शुड ऑलवेज यूज़ अ क्लीन रेज़र। तो हमेशा यूज़ करने से पहले उसे सैनिटाइज़र से क्लीन कर लो। इवन यूज़ करने के बाद भी आपको सैनिटाइज़र से क्लीन करके वो रेज़र को प्रिजर्व करना चाहिए। एंड ऑल्सो मैंने ना वो जो भी पीलिंग सॉल्यूशन था उससे लाइक कि मॉर्निंग यूज़ किया था, और शेविंग मैं रात में कर रही हूँ। अगर आप वो पीलिंग सॉल्यूशन रात में यूज़ करते हो तो शेविंग आप मॉर्निंग में कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, हमारे स्किन को वो टाइम मिल जाता है हील करने का। नाउ आई हैव स्टार्टेड शेविंग माई फोरहेड, एंड आप चाहो तो आप रेज़र की मदद से अपने आईब्रोज भी बना सकते हो, बट अपर आईब्रोज आप तो अच्छे से बना सकते हो। आई वोंट सजेस्ट कि आप लोअर आईब्रोज भी बनाओ। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप फिर से एलोवेरा जेल लगा सकते हो, क्योंकि वो अच्छे से ग्लाइड नहीं होगा, ठीक है। इफ़ यू आर बिगनर डोंट ट्राई टू ग्लाइड दैट रेजर इन on your dry face. It will hurt you and it may lead you to some infection also. सेकेंड थिंग, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपने अपर आईब्रोज एरिया को शेव किया, ठीक है। आप दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हो कि आप अपने आईब्रोज को ना लाइन कर लो अच्छे से, क्योंकि मेरी तो थिक आईब्रोज है तो मुझे लाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आप कोई भी आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को अच्छे से लाइन कर लो, ठीक है। फिर बहुत छोटे छोटे एरिया को लेके आप ना उसे वहाँ से शेव करना स्टार्ट करो, ठीक। एंड आपको हल्की से अपनी स्किन को वहाँ पे स्ट्रेच करनी पड़ेगी, तो फिर वो क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा कि कितने एरिया तक जाके आपको रुक जाना शेव। देख रहा हूँ मैंने कितने स्लोली शेव करा है। आप अपना मीन टाइम लेते हुए अच्छे से, जितना स्लोली हो सके, जितना प्रिकॉशंस आप ले सको उतने प्रिकॉशंस के साथ अपने आईब्रोज को शेव करना, क्योंकि आईब्रोज जो होते हैं ना वो बहुत ही एक प्राइमरी फीचर है आपके फेस के। तो अगर वो आईब्रोज के साथ आपने कोई भी छेड़खानी कर दी तो इट वॉन्ट लुक गुड, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ आईब्रोज के लोअर एरिया पे आप देख रहे हो कितने मतलब हल्के हाथों से काम किया है, बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, मैंने ये 2-3 बार किया है तो आई नो कि मुझे कितना प्रेशर और कैसे काम करना था। बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर शेविंग योर फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वोंट सजेस्ट कि आप आईब्रोज के लोअर एरिया को शेव करो।
आप ये दोनों जो आईब्रोज के बीच का जो एरिया होता है ना, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, कीप दैट एरिया क्लीन। उससे क्या होता है ना, आपका फेस बहुत ही क्लीन लगता है। वैसे भी अगर आप आईब्रोज बना के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका फेस बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन। तो मैंने वो एरिया क्लीन करा है और फिर मैंने नोज़ पे ना हल्के हल्के हाथों से शेव किया है। नोज़ क्या है ना, बहुत कर्वी एरिया है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो मैंने बस अपने हल्के हल्के हाथों से अच्छे से हर जगह जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि आई कैन रीडू द शेविंग, वहाँ जहाँ अच्छे से नहीं हुई है मैं वो कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू कट दीज फुटेज क्योंकि ये बहुत ही रियल और ओरिजिनल है, so I have kept it. See the peach fuzz on my face. ओके, सो मैंने अपने फेस को अच्छे से शेव कर लिया है। नाउ आई विल क्लीन दैट फेस अगेन विद द वेट वाइप, ताकि कोई भी रेज़र और हेयर और पीच फर्स के रेसिड्यू मेरे फेस पे ना रह जाए, बिकॉज नाउ आई हैव क्लोज माई ऑल ओपन पोर्स। सो मैंने इस रोज़ वाटर को एज अ टोनर यूज़ किया है। इट विल काम डाउन माई स्किन एंड जितना भी मेरा स्किन इरिटेट हुआ है रेज़र से, उससे मेरा फेस काम होगा। नाउ आई हैव यूज्ड माय मॉइस्चराइज़र, ऑल टाइम फेवरेट, दिस सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र, एंड सी आई एम अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र इन डैबिंग मोशन, क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, सो आई डोंट वांट टू गिव इट अनदर शॉक। सो मैंने एकदम हल्के हाथों से अपने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लिया है। So now whatever skin product, skin care product or whatever makeup I will use on my face, it will provide me a very healthy looking skin, क्योंकि कोई भी बम्प्स या गंग्स अब मेरे फेस पे नहीं है, तो माई फेस इज़ फीलिंग क्लीन